नमस्कार। फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ हेरत की शुभकामनाएं लेकर, और देखते हैं मियामी से हमारे लिए क्या सौगात आई है। आइए सुनते हैं। Namaskar. Shubh Shivratri. I am Sakshi Samvid Raina. I'm a Kashmiri Hindu born in the USA. I am also a 9th grade student and I volunteer at International Hindu University as well as South Florida Hindu Temple. I am also learning about my cultural heritage, traditions, and festivals. Though born here, we speak Hindi and Kashmiri at home. We celebrate all the religious festivals according to the Kashmiri tradition. Since we're celebrating Shivratri soon, I will share my experience about this great festival. Shivratri is assigned to Lord Shiva, but Herat is for invoking the Vatuk Bhairav. This is a thin line that can be drawn between Shivratri and Herat. While learning from my elders, we get involved as a unit from the first Tithi of the Falgun month. In Kashmir, we call it Hur Okto. This is the beginning of the 15-day function of the Herat. My grandmother told me that the word Hur is related to the cleaning of the kitchen and puja room, which in our tradition are considered the most sacred places. I've been taught that in our kitchen, the Devi Annapurna resides, while all the devtas abide by the puja room, and we call it the Thokarkut. Then we paint the house on or before the Hurashtami, which is known as Hur Atham. We cook special vegetarian dishes as we are vegetarians. Our dishes with lotus roots, paneer, radish, and turnip. First, we do a puja and offer Naivedya or Prepun. In the evening, we pray with Arti, Gorim, Ambam, Ambura, Askim, Shlokas, and Vatuk Stuti, composed by my grandmother. The Vagur is being invoked before one day of Herat, and I help my mom in mixing 6 circular seeds of soft vines. One for Kalash, then Vatuk Bhairav, Ram Gaur, Rishi Dulij, 2 Ketrapala, and the Sunny Putul. It is really fantastic to see my dad filling the Vatuk Bhairav with 108 walnuts, 11 in the Kalash, 36 in the Ram Gaur, and one in each Ketrapal, and on Shivratri. This is actually the day of celebration and religious enthusiasm. My mom fills these pots and knocks at the door while my dad says in Kashmiri, Kuch chup. My mom replies, Vatokraz. My dad says, Kya het? She replies, Anya het, Dhan het, Ruzi Rozgar het, and more. Then the Vatokraz is greeted with mantras. Celebration goes on for invoking the Herat with the morning puja. Then at night we do puja according to Kashmiri Jantri, and we do a small havan. We enjoy the food, which is of course dal, tamalu, monj, nadru, gogji, palak, and nadru churma. The next day we do a small puja. On the 15th day, we bid goodbye to the Vatak Raz and eat Naivedya. My mom, as the tradition goes, makes rice roti and we eat it with Vatok Navid. Namaskar, Herat Abhinandan. आज हमने घर पर हेरत कैसे मनाई उसकी कुछ झलकियाँ। कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृदुमदामोदङ्कृतं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च नृत्यं तथा
साष्टाङ्गं प्रणति सुततिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वं एतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं आज इतना हर्षोल्लास देखने को मिला। फिर 3 दशकों के बाद भी पुनः स्वयं को खड़ा करना बड़ी बात हो सकती है, मगर ये उन्हीं के लिए बड़ी बात हो सकती है जिन्हें अपने धर्म और कर्म में विश्वास है, अगाध विश्वास है, होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हेरत मनाना। हेरत हमारे कश्मीर का एक मुख्य पर्व है जो वर्ष में एक बार फागुन कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। पूरा प्रथमी से लेकर अमावस्या तक और अमावस्या से लेकर फिर अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक यह एक 22 दिनों का कार्यक्रम हुआ करता था। और अब इस पर्व को शॉर्टकट में मनाया जा रहा है। एक तो हेरत त्रयोदशी, फिर अमावस्या को अखरोटों को बांटना, स्वर्जुन जिसे कहते हैं, जिस दिन विसर्जन होता है कई चीज़ों का,
और देवी देवताओं को मतलब जिनका आवाहन किया होता है, जिन्हें बुलाया न्योता दिया गया होता है, उनका जो है उनको विदा भी किया जाता है। फिर तो उस विदाई के उपरांत हमारे यहाँ एक बहुत ही मतलब घनिष्ठ परंपरा भी थी। शिव चतुर्दशी को अपने यहाँ सलाम संज्ञा से संबोधित किया जाता था, क्योंकि यह वह दिन होता था जिस दिन मुस्लिम समुदाय आके बधाइयाँ देता था और उपहार ले जाता था। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से उनके यहाँ ईद होती थी और हिंदुओं के साथ वो कुछ खान पान की चीज़ें बधाई में बांटा करते थे, हमारे यहाँ बांटने की चीज़ जो वस्तु है वो ढून अथवा अखरोट हुआ करते हैं, जिनको रोटी के साथ बांटा करते थे हम। तो ये सब एक बहुत ही बड़ा उत्सव, महोत्सव जिसे कहना चाहिए। तो इसमें कई सारी चीज़ें, कई खेल, गायन भी होता था, भजन होता था, लीलाएं होती थी, क्योंकि घरों में साफ सफाई तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है हर महोत्सव में। किसी भी महोत्सव को देख लीजिए, जैसे दिवाली का महापर्व है, साफ सफाई का कितनी भूमिका रहती है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ लिवुन हुआ करता था, लेपन हुर एक होता था, कपड़ा जो मिट्टी में भिगोया जाता था, गीली मिट्टी में, जो इसमें गाय का गोबर मिक्स होता था, उसके साथ मिक्स करके उसका एक लेपन बना के पूरे घर का जो है लेपन किया जाता था। दीवारें पोती जाती थी। गुरिट मिर्च, एक पवित्र माने जाने वाली मिट्टी, जब साबुन का उपयोग नहीं होता था, जब हैंड वॉश नहीं होता था कश्मीर में, तब उसी गुरिट मिर्च से हम हाथ धोया करते थे। एक अपनी यादें ताज़ा हो रही हैं। और इन यादों में हमें ये भी याद है कि हम कैसे हारन गिंदुन करते थे, कौड़ियों से खेलते थे, जिसका वीडियो हाल ही में हमने पोस्ट किया था। और हुक्कुस पुक्कुस भी खेला जाता था, जो हाथों पे पर्टिकुलरली खेला जाता था। एक छोटा सा विश फुलफिलिंग राइम जिसे कहा जाता था कि इच्छा पूर्ति इससे होती थी। बच्चे खेल खेल में ऐसा कुछ बना लेते थे और अंत में जो जीत जाता था तो उसको ये कहा जाता था, चलो अब बताओ क्या खाने की इच्छा है, तो वो पूरी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो किस प्रकार से एंगेज रहते थे लोग, बच्चों को कैसे एंगेज रखते थे, खुद कैसे अन्य कार्यों में एंगेज रहते थे, और सब महोत्सव खुशी खुशी में बीत जाता था। नई नवेली बहू खुद लेके आती थी, जिसमें कई तरह के पदार्थ, कई तरह की चीज़ें, नमक, पैसे और खाद्य अन्न जो है, चावल और भी बहुत कुछ होता था। और हार, जो कौड़ियाँ होती थी, वो भी मालूम से लाती थी, वो मायके से लाती थी। और सब वो ध्यारदहम के दिन होता था, उस दिन वो आती थी। और सबसे मतलब बच्चों के लिए, और छोटे जितने भी बच्चे होते थे या जूनियर्स कहिए, या घर में बड़े जो हैं, त्रयोदशी को हेरत पूजा करते थे। उसका एक विशेष उक्ति याद है मुझे, हेरत मज आए दारी किंचाए, मतलब हेरत मज जो है, माँ हेमवती जो है, जो शैलपुत्री है, जो हिमालय की पुत्री है, दारी किंचाए, मतलब इस विशेष पर्व पर वो हमारी खिड़की से आगमन करती है, दरवाजे से नहीं, क्योंकि यह उसका माल्युन होता है। तो शायद ये प्राचीन परंपरा आज भी मतलब मनती है, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज जो धर्म है, जो शैव धर्म है और शाक्त धर्म है, इस सब से जो मिला जुला कुछ विचार बना है, उसको दैनिक जीवन तक में प्रयोग में लाता है। हमारा जीवन ही हमारा धर्म है, और जीवन ही धर्म होना एक
स्वाभाविक सी प्रक्रिया हो जाती है, स्वाभाविक जीवन जैसा हो जाता है। क्योंकि आपको शायद स्मरण होगा कि हमारी शादियों में भी जब दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो उनकी पोष पूजा होती है। पोष पूजा यानी पुष्पों से पूजन, और पुष्पों से पूजन जो दंपति होती है जिनका विवाह हो चुका होता है, उनका बाद में दोनों परिवार मिलके शिव और पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये शिवरात्रि सिर्फ शिवरात्रि के दिन नहीं मनती, हेरत के दिन नहीं मनती, ये हर विवाह के उस दिन मनती है। जिस वक्त भी दंपतियों का विवाह होता है उस वक्त भी मनता है ये सब। और ये सब चीज़ें एक बहुत ही सुमधुर तरीके के एक ये एस्पेक्ट्स, शेड्स हैं हमारे कल्चर के, जो कि एक बहुत ही मीठी सी चीज़ है जिसको हम प्रिजर्व तो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात, और कि ये सब हेरत जब मनती है तो उस दिन वटुक खारुन, वागुर भरुन, पहले तो इनके अलग अलग दिन होते थे, पंच पूजा होती थी, तो विशेष प्रकार से पूजा होती थी 5 दिन। आज तो समय के अभाव में अब पंच पूजा बहुत शायद कोई कर भी रहा है कि नहीं, ऐसा तो ज्ञात नहीं है। फिर भी ये एक ही दिन में ये सब पूजाएं, देवी देवताओं का आवाहन, वटुक भैरव का आवाहन, राम गढ़ु का आवाहन, वागुर और योगिनियाँ, क्षेत्रपाल, राष्ट्राधिपति और इतने सारे जो दिव्य मंडल जो आभा चारों ओर से फैलती है, देखते ही बनती है। और सबसे अनोखी बात यह भी है कि ये सब पूर्ण होने के उपरांत सभी भक्ति में रम जाते हैं और लीलाएं गाया करते हैं, आरतियां होती हैं, और इसके उपरांत में ये सब समेटना भी होता है। ये पर्व जो है, ये सिर्फ जो परिवार हैं वो सिर्फ जीवित लोगों के संग ही नहीं मनाते, देवी देवताओं को समर्पित होके उनकी पूजा करके ही नहीं मनाते, अपने पितरों को भी आहुतियाँ चढ़ाकर मनाते हैं, उनको भी आहुतियाँ देते हैं। सबको प्रसन्न करने का पर्व है ये हेरत, सबको प्रसन्न करने का पर्व है। और इससे भी अनोखी बात ये हुआ करती थी कि शिव चतुर्दशी के दिन हेरत खर्च होता था। हेरत खर्च बच्चों को धन के रूप में बांटा जाता था। तब तो पैसे जो भी होते थे बांटे जाते थे। तो ये भी सुनने में आया है कि प्राचीन काल में हार, जो कौड़ियाँ हैं, वो बांटी जाती थी। मगर जो परिवर्तन हो चले तो फिर चांदी के सिक्के भी, और जब हमारे समय में हमें तो 1 रुपया भी मिलता था, तो आगे चल के 2 रुपया मिलना शुरू हो गया, फिर 10 रुपये, फिर 50, 100। अब तो उसका भी एक नया रूप ले रहा है हेरत खर्च। तो हरे और पिंक नोट के रूप में ही सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एक एंटरटेनमेंट समझ लीजिए, एक खुशियों का पर्व समझ लीजिए, मगर इसका आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो इंसान को पुनर्जागृत करने का एक पर्व है। पुनर्जागरण जो है शिव और पार्वती के मिलन के माध्यम से, वो भी एक इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेड है।